Hello students, now I am going to continue with the chapter Quadrilaterals of 9th standard, practice set 5.2. So before going to start with the practice set, just we are going to revise the test for parallelogram. So in previous lecture we learned that is if the pair of opposite sides of a quadrilateral are congruent as well as parallel, then it is a parallelogram, as well as if the opposite angles are congruent, then it is also a parallelogram. So using this property we going to solve these examples. So first example is in the adjoining figure quadrilateral ABCD is a parallelogram. So you know that is this is the symbol of parallelogram. Just you have to draw the vertical lines and raise to M, and P and Q are the midpoints of the sides AB and DC respectively. Then prove that quadrilateral APCQ is a parallelogram. तो यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल हमें दिखाई दे रहा है, सो इट इज़ अ पैराग्राम, ए बी सी डी इज़ अ पैराग्राम, पी एंड क्यू, सो दीज आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी respectively, and here we have to prove that APCQ, that is APCQ, so this quadrilateral is also a parallelogram. तो हमें अगर कोई क्वाड्रिलेटरल अगर पैराग्राम दिखाना है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो टेस्ट है उसमें से एक तो हम अपोजिट साइड्स उनके जो है वो कॉन्ग्रेंट दिखा सकते हैं, या अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रेंट दिखा सकते हैं, या हम वन पेयर जो है अपोजिट वो हम कॉन्ग्रेंट या पैरेलल दिखा सकते हैं. तो जस्ट गोइंग टू सी, सो यहाँ पे हमें दिया है quadrilateral ABCD is a parallelogram. So ABCD is a parallelogram. So it is given. So using the property, that is, you know that is if the quadrilateral is a parallelogram then its opposite sides are same. So AB and CD are equal. So AB and CD are equal. So it is opposite side of the parallelogram. So हमें ये दिया गया है कि AP and Q these are the midpoints. So if AB and CD are the equal, AB and CD अगर equal है and P and Q are the midpoints, then AP, BB, then CQ and DQ, all these sides may be the same one. So AP is equals to BP is equals to DQ is equals to CQ. So all these are same because of P and Q are the midpoints. And from 2 में क्या हमें दिया है, that is AB and CD same है. तो इन ट्रायंगल PBC, so see where is PBC, so PBC ये नीचे वाला ट्रायंगल, एंड इन ट्रायंगल QDA, सो यहाँ का ऊपर वाला, ये दोनों ट्रायंगल जो है हम देख रहे हैं. तो इस ट्रायंगल में BP एंड DQ, सो BP एंड DQ ये दोनों जो साइड्स हैं वो सेम है. अभी हमने थर्ड नंबर स्टेटमेंट में भी दिखाया है कि BP एंड DQ आर सेम. तो यहाँ पे मैं BP और DQ पे इक्वल मार्किंग करती हूँ, BP and DQ, so they are same. So the reason is from 3, यहाँ से मैंने ले लिया. Then BC is equals to DA, so BC and DA ये दोनों भी सेम है because it is a parallelogram, and you know that is the opposite pairs, that is the pair of opposite sides of a parallelogram are congruent. So यहाँ पे opposite sides of parallelogram मैंने reason दिया है. Then angle B is equals to angle D, तो it is also the opposite angles of the parallelogram. तो यहाँ पे B angle is congruent with the D angle because these are the opposite angles of the parallelogram. So by which test both the triangles will be congruent? So SAS टेस्ट से ये दोनों भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. तो एक बार अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके रिमेनिंग साइड्स, रिमेनिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो PC इज कॉन्ग्रुएंट विथ QA, तो ये PC जो है वो AQ से कॉन्ग्रुएंट हो गए. PC एंड AQ हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया, CS CT. सो द रीज़न इज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. तो यहाँ पे हमें ये पता है कि AB इज़ पैरेलल टू DC बिकॉज इट इज़ अ पैरेललोग्राम, मतलब AP एंड CD तो पैरेलल है. और यहाँ पे हमने ये दिखाया कि AQ एंड CQ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है. सो अपोजिट साइड्स ऑफ द APCQ आर कॉन्ग्रुएंट एंड सो इट इज़ अ पैरेललोग्राम. यहाँ पे ये भी कॉन्ग्रुएंट है, AP भी कॉन्ग्रुएंट है, CQ भी कॉन्ग्रुएंट है. तो इफ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम. वी लर्न दिस property or test. So here we prove that APCQ is a parallelogram. After that see the next example.
Question number 2. So using the opposite angle test for parallelogram, prove that every rectangle is a parallelogram. तो हमें ये दिखाना है कि अपोजिट एंगल टेस्ट जो है पैरेललोग्राम की, दैट इज अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो इस टेस्ट का यूज़ करके हमें ये प्रूव करना है कि हर एक जो रेक्टेंगल रहता है वो पैरेललोग्राम भी होता है. तो ये फिगर हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे. तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रेक्टेंगल बिकॉज हमें ये रेक्टेंगल दिया गया है और इससे हमें पैरेललोग्राम ये जो रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूव करना है. So rectangle ABCD is a parallelogram, it is to prove. So see the first statement, that is quadrilateral ABCD is a rectangle, and so you know the properties of the angle properties of the rectangle, that is each angle of the rectangle is of 90 degree. तो हम ये लिख सकते हैं, that is angle A is equals to angle C is equals to 90 degree and angle B is equals to angle D is equals to also 90 degree. So it is because of the angles of the rectangle. Next, the pairs of opposite angles of the quadrilateral ABCD are congruent and so rectangle ABCD is a parallelogram. तो हमें ये पता है कि अगर pair of opposite angles are congruent, then it is a parallelogram because it is the angle property of the parallelogram. तो यहाँ पे हमने ये दिखा दिया है कि opposite angles, pair of opposite angles are congruent and so this rectangle is also a parallelogram. So by the test of the parallelogram, this is the answer. Now example number 3 and 5 is not in your syllabus this year, so I am going to solve the example number 4. Prove that the quadrilateral formed by the intersection of angle bisectors of all angles of parallelogram is a rectangle. See, prove that quadrilateral formed by the intersection of angle bisectors of all angles of the parallelogram is a rectangle. इसका मतलब क्या है कि हमें ये जो दिया है वो quadrilateral जो है वो पैरेललोग्राम है. तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम और इसके हर एक एंगल का हमने बाइसेक्टर निकाला है. तो हम यहाँ पे ऐसे मार्किंग करते हैं. तो यहाँ पे ये देखो एंगल ए से निकला हुआ ये एंगल बाइसेक्टर है और डी से ये एंगल बाइसेक्टर है, बी से ये एंगल बाइसेक्टर है और ये सी वाला एंगल बाइसेक्टर है. तो ये बाइसेक्टर्स एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है वहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ है, दैट इज PQRS, सो इट इज़ नथिंग बट अ रेक्टेंगल. तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि PQRS इज़ अ रेक्टेंगल. हमें दिया है ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम एंड हमें ये दिखाना है कि PQRS इज़ अ रेक्टेंगल. तो हमने गिवन में क्या लिखा है देखो, तो रेज AS, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है AS, देन BQ, सो CBQ, then CQ and then DS. So these are so they bisect angle A, B, C and D respectively and हमें प्रूव करना है that is quadrilateral PQRS is a rectangle. Now see हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पे देख लो. तो quadrilateral ABCD is a parallelogram, ये हमें दिया है. तो हमें ये भी पता है कि जो पैरेललोग्राम रहता है उसके जो एडजेसेंट एंगल है वो सप्लीमेंट्री रहते हैं. तो एंगल BAD, तो देखो आप यहाँ पे एंगल BAD एंड एंगल ADC, सो ये दोनों एंगल जो है वो एडजेसेंट एंगल्स है और ये दोनों एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री रहते हैं इन पैरेललोग्राम. तो इन दोनों का एडिशन मैंने 180 दिखाया. सो द रीज़न इज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. तो हमें क्या करना है कि ये जो स्टेटमेंट है इसके हर एक टर्म को हाफ से मल्टीप्लाई करना है. तो इसे मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया, इसे भी हाफ से मल्टीप्लाई किया, इसे हाफ से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 90 मिला. तो ये मेरा सेकेंड स्टेटमेंट है और रीज़न दिया मैंने मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय हाफ. तो हमें ये देखना है कि हाफ ऑफ BAD क्या होता है. तो BAD का हाफ कौन सा है, BAD का हाफ एंगल 2 है, एक ये वाला है और एक ये वाला है. तो हमने BAD का हाफ लिया है ये, दैट इज DAS, ये वाला जो एंगल है मैं टिक मार्क करती हूँ. तो मैंने ये एंगल ले लिया, इसका हाफ जो है. तो एंगल ADC का हाफ हम देखते हैं. सो ADC, इसके हाफ 2 एंगल है ये और ये. तो उनका हाफ जो मैंने लिया है वो अंदर वाला लिया है, जैसे ये अंदर वाला लिया तो ऐसे ये भी. सो वी कैन रीड द एंगल दैट इज
DA और ADS। तो इसका हाफ मैंने लिखा, इसका हाफ भी मैंने लिखा, 90 इज एज इट इज़। सो ये हमने क्यों लिखा, बिकॉज हमें ये दिया है दैट इज दीज आर द एंगल बाइसेक्टर्स। सो गिवन एंड व्हाट वी आर गिवन दैट इज दीज आर द बाइसेक्टर्स। नाउ सी इन ट्रायंगल ASD, तो हमें ये ट्रायंगल देखना है। अभी मैं इसके ऊपर टिक मार्क करती है, तो ये वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल AS एंड D। तो हमें इस ट्रायंगल में ये देखना है कि इस ट्रायंगल के हर एक, ये जो तीनों एंगल्स है उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो हम लिखेंगे दैट इज एंगल ASD, ये वाला AS एंड D प्लस एंगल ADS प्लस एंगल SAD, ये तीनों का सम 180। तो आपको पता है दैट इज सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180। और वी कैन यूज द सिंगल स्टेटमेंट दैट इज सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल मतलब सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर, the sum of measure of all angles of the triangle is 180. The meaning of this one is, now see we putting ASD is as it is. See DAS and SDA, तो इसका जो मेजरमेंट है वो हमने पहले से फाइंड आउट करके लिखा है। DAS प्लस SDA इज नथिंग बट 90। तो इन दोनों के जगह पे मैंने 90 लिखा है, इज इक्वल्स टू 180। सो वी टेक इट फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 3rd and 4th, दैट इज वी टेकिंग द वैल्यू फ्रॉम 3rd and putting into 4th we get this one. So in this way we can find out ASD is equals to 90। मतलब ये जो एंगल है वो एंगल कितना हुआ, 90 हुआ। अगर ये 90 है तो ये भी क्या हुआ, 90 हुआ, बिकॉज दीज आर द वर्टिकल एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम देखेंगे दैट इज एंगल PSR इज इक्वल्स टू एंगल ASD। सी PSR जो मैंने अभी बोला एंड एंगल ASD both are equals to 90 degree since they are vertically opposite angles. Now see angle BAD and ABC. So see BAD and next one is ABC, A B and C। मतलब मैंने ये दोनों एंगल लिए हैं, BAD C, BAD एंड ABC। तो ये दोनों एंगल्स हम अभी ले रहे हैं। ये दोनों भी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है और वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इनके एडिशन, ये जो मैंने सॉल्व किया है उसी प्रकार से हम ये नीचे वाला भी सॉल्व करने वाले। सो BAD प्लस ABC इज इक्वल्स टू 180, दैट इज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द पैरेलल आर सप्लीमेंट्री। हर एक टर्म को हाफ से मैंने मल्टीप्लाई किया, रीज़न इज द सेम। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट BAD का हाफ कौन सा है। तो देखो BAD का हाफ ये भी है और ये भी है, तो हमें अब कौन सा लेना है, तो ये वाला एंगल लेना है। तो मैंने एंगल लिया है RAB। तो देख लो थोड़ा सा, ये मैंने लिया RAB, मतलब ये अंदर वाला एंगल मैंने यहाँ पे ले लिया, RAB। ठीक है, वैसे ही ये जो टोटल एंगल है ABC उसका भी हाफ एंगल हमें लेना है। एक तो ये आएगा और ये आएगा, तो हम कौन सा लेने वाले हैं, ये वाला एंगल लेंगे हम। तो मैंने यहाँ पे लिखा एंगल ABR। तो देख लो ABR कहाँ है, ABR, यहाँ तक तो हमने एंगल ले लिया, ABR, ये वाला एंगल ले लिया। ठीक है, तो इन दोनों का एडिशन कितना आया, हाफ ऑफ 180 दैट इज 90। सो वी हैव गिवन दैट इज दीज आर द बाइसेक्टर्स। नाउ सी इन ट्रायंगल ARB, अब हम ये ट्रायंगल लेने वाले हैं ऊपर का, दैट इज ट्रायंगल ARB। तो इस ट्रायंगल में भी सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180। तो हम क्या दिखाएंगे, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, इन सब का एडिशन कितना है, 180 है। तो हम कैसे लिखेंगे, एंगल ARB प्लस एंगल BAR प्लस एंगल ABR इज इक्वल्स टू 180। दैट इज सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल मतलब सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180। नाउ सी इन दोनों का एडिशन 90 है, RAB प्लस ABR, RAB प्लस ABR इज 90 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस एंगल ARB इज इक्वल्स टू 180, सो ARB इज इक्वल्स टू 90। तो देखो ये जो है ARB, तो ये वाला जो एंगल है वो हमने क्या लिखा है, 90 हमने फाइंड आउट किया है। तो ARB 90 है, मतलब SRQ 90 है। समझ में आए,
So ARB, just I am changing the name of the angle. SRQ is 90. तो हमने ये प्रूव करके दिखाया कि ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है. तो यहाँ पे देख लो. So angle ARB is 90. So angle that is nothing but angle SRQ is the 90. So similarly we can here prove that is PQR and SPQ is also 90. यहाँ पे हम ये भी दिखा सकते हैं. अभी हमने ये इन दोनों को 90 दिखाया, वैसे हम इन दोनों को भी 90 दिखा सकते हैं. तो हमने ये प्रूव किया कि all angles of the quadrilateral PQRS are of measure 90 degree and so it is a rectangle. So here we finish the practice set 5.2 and the remaining examples, remaining concept we'll see in the next lecture. Thank you.